All right. Good afternoon, everyone. This is Rohan Rao, co-convener of Spartan Digital Conclave, and our convener, sir, Mr. Pratyush Ranjan, will be with us soon and sends his regards. I welcome you all to our flagship webinar series, that is Vartalap. Here, we will be having eminent personalities with well-documented history of work in multi-diverse backgrounds who will join us to enlighten your minds on pertinent matters and interact with you. Today marks the first day where we begin our webinar series. We have with us Professor Dr. Deepak Mohanty. He's a former research scholar, IIT Kharagpur, an IIT professional and a CS expert. And Ash Ojas Pandesa. He's a research scholar from Department of Humanities and Social Science, NIT Ralkola. Over to you, sir. Deepak Mohanty, sir. Okay. So, a very good afternoon to all. Namaste to all who are present here. I am Dr. Deepak Kumar Mahanti, and I am very much pleased to extend a very warm welcome to all of you for this today's session. I welcome you all on the behalf of Think India Odisha to this session, Vartalap 2020. Vartalap 2020 is a digital conclave organized by Think India Odisha in collaboration with Spartan Digital Conclave. So before we are getting started, I would like to give a brief introduction about Think India. Think India is a nationalist organization established to bring together the best talent of this country and to infuse them with a nation-first attitude. It is an active forum of research scholars, professors, and students of institutes of national repute like IITs, IIMs, NITs, Niger, National Law University, etc. Now, I would like to introduce today's speaker, Sri Asutosh Bhatnagarji. Sri Asutosh Bhatnagarji is an eminent author. He has written a number of books on Jammu and Kashmir issue and international relations. He is a senior journalist, regular columnist for many national newspapers, and he is presently the acting as a director of Jammu Kashmir, dedicated to the study of Jammu and Kashmir. On the topic life after 370, Jammu Kashmir and Ladakh Valley. So I request all of you, all the participants, to keep their mic off, and whatever their queries during this session, please don't interrupt in the middle. They are requested to write their queries or questions in the chat box. At the end of the session, our moderator will carry forward their questions and will discuss uh, with the speaker. Now, I welcome you, sir, Sri Asutosh Bhatnagarji, to present his valuable knowledge to this session. I welcome you, Asutosh Bhatnagarji, up to him. नमस्कार। आज के इस वार्तालाप में आए हुए सभी मित्रों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हम जानते हैं पिछले कई डिकेड्स से 70 साल से एक अलग तरह की समस्या से जूझ रहा था और देश के साथ जिस तरीके को एक होना चाहिए था वो एक नहीं हो पा रहा था। इसलिए कुछ विशेष परिस्थितियां वहां बनी थी जो हमें एक होने में, एकजुट होने में, पूरे देश को एक बनाने में जो प्रयास चल रहे थे उसमें कुछ कठिनाइयां पैदा कर रहे थे। हम पिछले 5-6 अगस्त को एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ भारत सरकार की ओर से, और को भारत से अलग रखने की जो कारण थे वो सब कारण दूर हो गए। सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर अब भारत के बाकी सभी राज्यों के से मिलता जुलता एक राज्य हो गया है। जम्मू कश्मीर जिसको हम जानते हैं उसका इतिहास और भारत का इतिहास ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। जम्मू कश्मीर ही भारत है और इसलिए जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कुछ न मानते हुए भारत के रूप में समझने की कोशिश से ही हमें सही पक्ष उसका सामने आ सकेगा।
उड़ीसा में हम बैठे हैं, जम्मू कश्मीर से बहुत दूर है, लेकिन जम्मू कश्मीर से भारतीय होने के नाते हम सबका रिश्ता नाता है ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर को देश के अलग अलग हिस्सों से समय के अलग अलग फेर में जोड़ते रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं कहूं तो भारत का सबसे पहला लिखित इतिहास ये राजतरंगिणी जो 11वीं शताब्दी में लिखा, और आज जो रिसर्च मेथोडोलॉजी जिस माध्यम से हम शोध करते हैं उस रिसर्च का प्रयोग करते हुए उस समय के एक विद्वान कल इस राजतरंगिणी को लिखा। और राजतरंगिणी बताती है कि सम्राट अशोक जो सम्राट रहा, वहां का सम्राट कश्मीर का सम्राट था। लंबे समय तक उसने कश्मीर पर शासन के बाद उसका पुत्र था जलौक, जिसके हवाले वो कश्मीर का शासन करके यहाँ आया और मगध और कलिंग का साम्राज्य उसने स्थापित किया। तो इस तरह एक लगातार का संबंध हमारा बनता है। इसी तरह एक और कश्मीर का राजा था ललितादित्य। इतिहास में मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि इतिहास में इन बातों का आमतौर पर हमारे सामने उल्लेख नहीं आता। ललितादित्य कश्मीर का सम्राट था और बंगाल और उड़ीसा और दक्षिण तक भी, कन्याकुमारी तक भी, ये सब उसके राज्य में थे। खासी हिल्स भी उसके राज्य में थे। यानी कि कई दौर इतिहास के ऐसे आए जब कलिंग राज्य के, उत्कल राज्य के अंतर्गत कश्मीर था, और ऐसे ही कई इतिहास के कई दौर ऐसे भी थे जब कश्मीर के अंदर कलिंग और उत्कल और मगध थे। इसलिए ये कहना कि जम्मू कश्मीर कोई अलग पहचान बन गई है, दृष्टि से ठीक नहीं है। जानकारी के अभाव में ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, गौड़ देश कहा जाने वाला बंगाल के हिस्से, ये किसी न किसी समय पर सब एक साथ रहे हैं, और इसलिए भारत के एक साथ रहकर जो एका है उसकी सृष्टि करते हैं। मैं आपको आज के विषय में ले जा रहा हूं कि थोड़ी पृष्ठभूमि हमें ध्यान में रहे। गति का जिसका हम बड़ा गर्व करते हैं, उसके इतिहास के शुरुआती दौर में हम देखते हैं, सभ्यता का जो इतिहास हम पढ़ते हैं उसमें जो मूल हमारे मूल्यों की रचना हुई वो सरस्वती और सिंधु नदी के बीच में हुई। हम जानते हैं सरस्वती आज के हरियाणा से गुजरती थी, गुजरात होती हुई जाती थी, और सिंधु मानसरोवर के निकलकर कश्मीर के लद्दाख मंडल से होती हुई आज के पाकिस्तान में जाती है, और सिंधु होते हुए सिंधु अरब सागर में मिल जाती है। तो इन दोनों नदियों के बीच में जो भूभाग रहता था वो सप्त सिंधु कहलाता था, क्योंकि ये 7 नदियों के बीच का क्षेत्र था। पंजाब की 5 नदियां, रावी, सतलज, व्यास, झेलम और चिनाब, इन 5 नदियों के सबसे नीचे सरस्वती और सबसे ऊपर सिंधु। ऐसे इन 7 नदियों के बीच में जो भूभाग है उसमें भारत की संस्कृति सबसे पहले दौर में पैदा हुई। वहीं से बहुत सारे लोगों के देश में आज जो भी जहाँ भी भारतीय नागरिक के रूप में रह रहे हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, वो उनका जन्म इसी 7 नदियों के बीच के किसी क्षेत्र में हुआ, और उनके पूर्व किसी न किसी समय वहां से निकलकर पूरे भारत में फैले। आज जो हर कोई जो अपने आप को भारतीय कहता है वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से है। ये हो सकता है कि सबसे अंतिम दौर का निष्कासन 1990 में हुआ, एक बड़ी संख्या में लोगों को निकलना पड़ा, और हो सकता है कोई 30 साल पहले निकला हो, कोई 3000 साल पहले निकला हो, लेकिन हम सबके पूर्वज किसी न किसी रूप में इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और इसलिए इस क्षेत्र का हमारा अपना एक संबंध, और जिसको भुलाया नहीं जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। इतिहास के जाते रहे हम सब जानते हैं, इसलिए मैं उसमें बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, उस पर कभी और बात कर सकते हैं। लेकिन पिछले स्वतंत्रता के समय से इसको जरूर समझने की कोशिश करनी चाहिए। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो अंग्रेज मानते थे
कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में जाना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए इसके लिए। माउंटबेटन स्वयं कश्मीर गए और बहुत सारी अन्य लोगों से उन्होंने प्रयास किया दबाव डालने का कि वहाँ के महाराजा, जम्मू कश्मीर के महाराजा पाकिस्तान में अपना विलय कर ले, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि जितना पाकिस्तान को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, कम से कम उतना हिस्सा आक्रमण करके कब्जे में ले लिया जाए। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया और जम्मू कश्मीर का आधे से अधिक हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया। जब ये घटनाक्रम चल रहा था, उसमें देश के हर हिस्से में, पंजाब से, सिंधिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, जहां जहां लोग रहते थे और उनको लगा रहना पाकिस्तान बनने के बाद संभव नहीं है, या वहां पर हुए आक्रमण ने उनका सब कुछ कर दिया, तो जान बचाने के लिए वो लोग उन हिस्सों में आए जहां वे अपने आप को सुरक्षित मानते थे। ऐसे ही थी जो पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब, खास तौर से सियालकोट जिला जो आज है गुजरात जिला, सियालकोट जिला, इन क्षेत्रों के लोग ये जम्मू कश्मीर में आकर बसने की कोशिश की इन्होंने, क्योंकि वो उनके सबसे नजदीक था। और इसी तरह जम्मू कश्मीर के उन हिस्सों के लोग जिनका, जो जम्मू कश्मीर के ही निवासी थे, लेकिन उनके हिस्सों पर पाकिस्तान ने आक्रमण करके उनके घरों पर, उनके शहरों पर, गांवों पर कब्जा कर लिया था और उनको जान का खतरा पैदा हो गया था। ऐसे दोनों प्रकार के लोग वहां से भागकर जम्मू कश्मीर में अपनी जान बचाने के लिए आए। जम्मू कश्मीर में दुर्भाग्य से उनका स्वागत नहीं हुआ, उनको आश्वासन बहुत मिले, लेकिन अंततः उनको एक ऐसी स्थिति में डाल दिया गया जब वो वहाँ के निवासी तो थे, लेकिन नागरिक अधिकार उनके वंचित कर दिए। वो वहाँ पर केवल रह रहे थे और उनको रहने के लिए जो झोंपड़ी डालने की जगह दी गई थी, बस उस झोंपड़ी की जगह पर भी वो केवल झोंपड़ी के मालिक थे, झोंपड़ी के नीचे वाली जमीन के मालिक नहीं थे। वो जमीन का कुछ नहीं कर सकते थे, उस जमीन पर रह सकते थे। केवल इतनी स्थिति में वहाँ के लोगों को डाल, जिनकी संख्या लगभग 15 लाख से अधिक है। जब छोटे छोटे मानवाधिकारों के उल्लंघन पर दुनिया हिल, देश के तमाम जो एनजीओ हैं करता है, वो आंदोलन करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो ऐसे लोग जिनके नागरिक अधिकार निश्चित नहीं, भारत का संविधान जिन्हें अधिकारों को सुनिश्चित करता था, वो अधिकार भी उनके लिए सपना हो गया, नहीं ले सके। ऐसे सारे लोग, और 5 नहीं 15 लाख से अधिक थी, ऐसे लोगों के लिए देश में कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी ने उनकी सिफारिश नहीं की, किसी ने उनके लिए लड़ाई लड़ी नहीं। नतीजा ये हुआ कि गुमनामी में, अंधेरे में ऐसे लाखों लोग हैं जो अपने मूल अधिकारों से वंचित थे, और उन अधिकारों से वंचित थे जिनकी गारंटी भारत का संविधान अपने प्रत्येक नागरिक को देता है। इनमें वहाँ के वो रहने वाले भी हैं जो 47 से वहाँ पर रह रहे हैं या उससे भी पहले से वहाँ रह रहे हैं। इनमें वहाँ के रहने वाले वो लोग भी हैं जिन्होंने अपने जीवन की 30 साल वहाँ पर केंद्रीय सरकार में नौकरी की। वो भले ही IAS भी रहा हो, वो वहाँ का रेवेन्यू कमिश्नर तो हो सकता है, वो वहाँ का मंत्री, चीफ सेक्रेटरी हो सकता है, लेकिन वो अपने रहने के लिए एक घर नहीं खरीद सकता था 35 साल उस राज्य की सेवा करने के बाद, क्योंकि वहाँ के कानून उसको इसकी इजाज़त नहीं देते थे। इसी तरह वहाँ की महिला ने अगर कभी राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति से शादी कर ली, भले रहता है, लेकिन अगर वो वहाँ का स्थायी निवासी नहीं तो उस महिला के भी सारे अधिकार समाप्त हो जाते थे और उस महिला के बच्चों को नहीं मिलते थे। उसने जो अपनी संपत्ति अर्जित, अपनी मेहनत से भी जो संपत्ति अर्जित बच्चों को नहीं दे सकती थी। ऐसा एक मानवाधिकारों को कानून वहाँ पर बना लिए गए थे, और जिस अनुच्छेद 370 की बात करते कि आड़ में ही ये सारा कुछ हुआ था, भारत के संविधान के साथ भी खिलवाड़ हो गया, के संसद को भी अंधेरे में रखकर ये सारे नियम बन गए और जीवन को जीवन भर अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ा। इसलिए जब हम बात करते हैं कि 370
के बाद, इसमें मैं ये बात जरूर अंडरलाइन करना चाहूँगा कि 370 हटा नहीं है। ये खासतौर से उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शोध के क्षेत्र में हैं, उनको ये ध्यान में रहना चाहिए। 370 हट गया है ये जो कहा जाता है, वास्तव में वो हटा नहीं है। 370 आया क्यों था, इसको जरूर समझने की हमें जरूरत है। 370 इसलिए नहीं आया कि वहां पर कुछ विशेष दर्जा देना था। 370 जम्मू कश्मीर को कोई विशेष दर्जा नहीं देता है। उसका टेक्स्ट आप पढ़ेंगे संविधान में। जम्मू कश्मीर एक टेम्परेरी प्रोविजन है जो वहां के को कोई विशेष दर्जा नहीं देता है। लेकिन आया क्यों? आया इसलिए कि जब वहां पर उसको प्रस्तुत किया गया बिल, गोपाल स्वामी अयंगार जो उस समय मंत्री थे और कश्मीर मामलों को देख रहे थे, उन्होंने जब संविधान सभा में भारत की ये बिल प्रस्तुत किया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि वहां पर राज्य का हिस्सा दुश्मन के कब्जे में है, वो कब सेटल होगा ये हम और ऐसी स्थिति में जब वहां के जानी नहीं जा सकती, वहां के लोगों के लिए कुछ किया नहीं जा सकता, तो पर भारत का नियम, भारत का संविधान ये लागू कैसे करें? क्योंकि पूरे देश में जो संविधान सभाएं बनी थी या विधान गई थी, उन्होंने भारत में के विलय की पुष्टि की थी, रेटिफिकेशन। हमारे राजा ने जो भारत में विलय का प्रस्ताव किया था, हम उस राज्य की जनता के रूप में भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव की स्थिति नहीं थी, विधानसभा भी नहीं बन सकती थी, संविधान सभा भी नहीं बन सकती थी, इसलिए वहां की जनता की राय जानना और भारत में विलय की पुष्टि करना ये कानूनी रूप से संभव नहीं था। और जब तक ये ना हो जाए तब तक भारत का संविधान वहां लागू कैसे हो? और अगर भारत का संविधान लागू ना हो तो वहां पर बिना संविधान के शासन, पूरा देश में संविधान का शासन हो, क्योंकि वो एक रिपब्लिक है, और भारत के ही एक राज्य में संविधान का शासन ना हो, ये कैसे संभव है? तो ऐसे जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए आर्टिकल 370 लाया गया, जिसका सीधा तो एक लाइन में कहें तो आर्टिकल 370 का काम था भारत के संविधान के जरूरी अंगों को, जरूरी अनुच्छेदों को जम्मू कश्मीर में लागू करना। यानी भारत के संविधान को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर में लागू की गई थी। लेकिन इसका विपरीत हुआ क्या? हुआ कि 370 के कुछ प्रावधानों की आड़ लेकर इस देश के संविधान के साथ धोखाधड़ी की गई। भारत को अंधेरे में रखकर 370 का दुरुपयोग कर वहां की सरकार में बैठे लोगों ने भारत के राष्ट्रपति से मनमानी कुछ घोषणाएं करा ली और वो उनको लागू कर लिया। इसलिए जो कुछ 370 के नाम पर हम सुनते रहे कि वहां हम जाकर रह नहीं सकते, वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते वगैरह, जो कुछ भी हम सुनते हैं, 370 में कहीं नहीं लिखा। 370 में तो यही लिखा है कि वो भारत का संविधान वहां पर लागू करने के लिए बनाया गया है। वो 370 की आड़ में किया गया एक फ्रॉड था जो चला आ रहा था। अगस्त 2019 में जो किया गया, वो उस फ्रॉड को आगे भी हो सकने के सारे रास्ते समाप्त करने का काम किया गया है। और इसलिए अगर अब जो अगला एडिशन छपकर आएगा भारत के संविधान का, वो स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है कि अनुच्छेद 370 कहता है कि भारत का संविधान पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में लागू होगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भारत का अनुच्छेद 370 कहता था कि भारत के संविधान के जिन हिस्सों को सरकार ने स्वीकृति दी है वो लागू होंगे। समय समय पर जो अध्यादेश लागू किए हैं, जो आदेश लागू किए हैं, जो प्रस्ताव पारित किए हैं, वो सारे जम्मू कश्मीर में लागू हुए हैं और सरकार जिनकी सहमति व्यक्त करेगी केवल वो हिस्से भारत के संविधान के जम्मू कश्मीर में लागू, उसका व्यवहारिक पक्ष था। अब 370 वास्तव में जिसका वो काम कर रहा है, यानी 370 में अब का जो परिभाषा है कि वहां पर कोई भी प्रस्ताव पारित हुआ हो, वहां पर कोई भी अध्यादेश लागू, वहां पर कोई भी राष्ट्रपति का निर्देश मौजूद हो, लेकिन किसी भी चीज के होने के बावजूद भारत का संविधान पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का। इसलिए 370 के बाद इस संशोधन
जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जीवन ये ठीक वैसा है जैसा भारत के किसी भी नागरिक का है। उसको वो सारे अधिकार के किसी भी नागरिक को मिले हैं और उसको वो सारे कर्तव्य भी करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई है जो भारत के किसी भी नागरिक के हैं। इस तरह पूरा देश, जिसको हम अभी तक मुहावरे में कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हो गया, कुछ दिनों पहले हमने उसको और बदल कर कहा कि कश्मीर से करगिल तक हो गया। ऐसा भी हमने, अगर आप लोग थिंक इंडिया वाले हैं सब, आगरा का जो अधिवेशन हुआ उसमें ये नारे लगे थे करगिल से कन्याकुमारी। मैं इसको एक कदम और आगे बढ़ाता हूं और 31 मार्च 2020 के बाद अब ये है कराकोरम से कन्याकुमारी। अब ये करगिल कश्मीर से भी आगे है, करगिल से भी आगे है। हिमालय के कराकोरम रेंज से लेकर और कन्याकुमारी सागर के तट तक ये पूरा भारत है जो भारत के संविधान में वर्णित है। 31 अक्टूबर को भारत का नक्शा पहली बार हमने जारी किया जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख को कराकोरम तक दिखाया गया है। इसलिए अब न कश्मीर न कराकोरम से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। 370 के बाद की एक सबसे बड़ी उपलब्धि अब भारत से कन्याकुमारी है। दूसरी उपलब्धि, भारत के प्रत्येक मान ही जम्मू कश्मीर के नागरिकों के भी कर्तव्य और अधिकार गए हैं, इसमें कोई अंतर नहीं बचा। तीसरा, भारत के अपने किसी भी क्षेत्र में जो अधिकार प्राप्त हैं किसी अन्य राज्य में, वैसे ही सारे के जम्मू कश्मीर में भी अधिकार हमें मिल चुके हैं। ये चौथी चीज, वहां की महिलाएं, वहां के जो विभाजन के वहां पर विस्थापित होकर रहने वाले वहां के शरणार्थी, ये सारे के सारे लोग, इन सबको भी समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं जो इन्होंने 70 साल बहुत कष्ट में बिताए हैं। वहां पर पूरे देश से जाकर राज्य करने वाले या प्रशासन में भाग लेने वाले लोग जो देश में कहीं से भी जाते हैं, उड़ीसा से भी गए, आज हम देखते हैं कि वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उड़ीसा से पहुंचे हैं। आप कल्पना कीजिए कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर तो थे, लेकिन आज से 1 साल पहले वो अगर चाहते तो वहां पर अपना फ्लैट नहीं खरीद सकते थे, वहां अपना राशन कार्ड नहीं बना सकते थे, वहां पर अपनी लिए एक खेती की जमीन नहीं खरीद सकते थे, वहां पर रहने के लिए घर नहीं ले सकते थे, वहां पर वोट नहीं दे सकते थे। वो वहां के इलेक्शन कमिश्नर हो सकते थे लेकिन वोट नहीं दे सकते थे। वो वहां के चीफ सेक्रेटरी हो सकते थे लेकिन रहने के लिए उनके बच्चे को वहां के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता था। ये जो परिस्थितियां पैदा की गई थी वो सारी समाप्त हो गई हैं। सभी लोग जिन्होंने 15 साल में रह लिए हैं वो सब वहां का डोमिसाइल पाने के अधिकारी। इसी तरह वो सारे केंद्रीय अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने उससे अधिक सेवा राज्य में कर ली है वो सब के सब डोमिसाइल प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह इन अधिकारियों कर्मचारियों के बच्चे वहां कम से कम 7 वर्षों तक की परीक्षा पढ़ाई की है या 12th का बोर्ड एग्जाम में भाग लिया है, भले चाहे पास हुए या फेल, लेकिन उसमें भाग। तो ऐसे 7 वर्ष तक पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी, ये तीनों वर्ग के लोग वहां पर डोमिसाइल पाने के अधिकारी हैं, वहां पर नौकरी पाने के अधिकारी हैं, वहां जमीन खरीदने के अधिकारी हैं, वहां पर अगर आप बाकी अर्थाएं पूरी करते हैं तो वहां मेडिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी बन सकते हैं, आप वहां पर अपना वोट दे सकते हैं, वहां पर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो ये 370 के बाद का परिवर्तन है जिससे वंचित 70 साल तक लोग रहे, यानी कि लगभग 3 पीढ़ियां ऐसी बीत गई जो वहां पर रहते हुए भी उसको अपना नहीं कह सकते थे और जिस जमीन पर रह रहे थे वो भी उनकी अपनी नहीं थी। उनका जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। दूसरी बात यह है कि ये इस प्रकार के कानून वहां लागू होने के कारण विकास के अवसर वहां पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वहां कहीं से जाकर कोई निवेश, कोई इन्वेस्टमेंट वहां नहीं जा सकता था, कोई जाकर वहां पर इंडस्ट्री नहीं लगा सकता था, कोई बिजनेस नहीं कर सकता था, कोई और इस प्रकार की गतिविधि नौकरी नहीं कर सकता था। इसलिए वहां पर एक्सपर्टाइज नहीं पहुंची, इन्वेस्टमेंट नहीं पहुंचा, वहां पर स्कॉलरशिप नहीं पहुंची। वहां पर विकास के बहुत सारे आयाम ये
थे। लेकिन अब इस सब में परिवर्तन आने के बाद ये सुनिश्चित हो गया है, अब भारत के वहां जाने का समय है, भारत वहां जा सकता है, व्यवसाय कर सकता है, भारत वहां नौकरी कर सकता है, भारत का हर नागरिक वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अपना उद्योग शुरू कर सकता है। और इसलिए विकास की एक नई लहर राज्य में पैदा होगी, जिससे बड़ी मात्रा में रोजगारों का सृजन होगा, बड़ी संख्या में लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों का विकास होगा, बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं का वर्ग बढ़ेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, और इस तरह विकास की एक नई भूमिका ये 370 में संशोधन के बाद से जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रही है, और इसके असर शुरू हो गए हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं है जब हम ये सब कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रेजेंटेशन बीच बीच में आ रहा है, इसको अगर रोक सकते हैं तो अच्छा है। Abhishek Guha, please stop presenting your screen. Abhishek Guha, please tap on the upper half of your screen that says stop presenting. It's disrupting our meeting, please. Abhishek Gautam, are you there? Sir, please stop presenting or I have to remove you. Abhishek Gautam. मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये परिवर्तन हम केवल जम्मू कश्मीर में और कर दिया करके दिखा दिया, किसी को हमने हरा दिया, जिता दिया, इसमें किसी को हराने या जिताने का कोई अर्थ नहीं है। हमने कश्मीर में करना था और बाकी कहीं नहीं करना था, ऐसा नहीं है। वहाँ पर कश्मीर में कोई रहता है इसलिए उसके बारे में कुछ विचार हो रहा था, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा अपने ध्यान में लें तो स्वतंत्रता के बाद भारत की संसद ने, यहाँ तक के संविधान लागू होने से भी पहले 1948 में कुछ रास्ते तय किए थे आगे के, और उसमें उन सबको जो हमने दृष्टि सोची थी भारत आगे का कैसा होगा, उसको कल्पना में लेकर हमने एक रास्ता अपना सोचा था, और उस रास्ते को हमने बाकायदा छाप कर व्हाइट पेपर के रूप में हमने जारी किया था। सरकार किसकी थी? ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हमने ये सब एक देश के नाते किया। मैं इसको राजनीति से बहुत दूर रख रहा हूँ, और ये राजनीति का विषय नहीं, ये देश का विषय है। ना ये बीजेपी कांग्रेस का विषय है, ना हिंदू मुसलमान का विषय है। राजनेता जो थे या उस समय की सरकार जो थी, वो भारत की सरकार थी। भारत की सरकार ने भारत के नागरिकों के आधार पर उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया था, जो उन्होंने लिखित रूप से व्हाइट पेपर में जारी किया था, कि आने वाले समय में उसके लिए जितना भी श्रम हमें करना पड़े, हम भारत को, पूरे देश को व्यवस्था में लाएंगे। क्या अर्थ था इसका? तो उन्होंने स्पष्ट में एक प्रशासन व्यवस्था होगी, एक न्याय व्यवस्था होगी, तो व्यवस्था होगी, एक सुरक्षा व्यवस्था होगी, बातें हम पूरे देश में एक करेंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प किया था। ये देश का संकल्प, और हम देखते हैं कि एक एक करके हमने चरणबद्ध रूप से, पहले हर राज्य की अपने कानून थे। 1956 में हमने राज्यों का पुनर्गठन किया। राज्यों को, पहले जैसे राज्य थे उनको बदलकर अपने हिसाब से, प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से हमने राज्यों का पुनर्गठन कर दिया। भाषा के आधार पर हमने राज्य बना दिए। पुरानी रियासतों को हमने विलय कर दिया। उन राजाओं को हमने राज्य प्रमुख कहा था। उन राज्य प्रमुखों को हमने कहा कि भाई अब लोकतंत्र आ गया है, और आप भी अगर राजनीति से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चुनकर आइए, जनता से वोट मांगिए, जनता से चुनकर आइए। हम देखते हैं बहुत सारे राजा उसमें से चुनकर भी आए। हमने उसके आगे बढ़कर उनको प्रीवी पर देना शुरू किया था। कुछ समय बाद 1971 में आकर हमने कहा कि भाई आप में उनको पदवियां दी जाती थी। बाद में भी भारत सरकार द्वारा भी राजा की पदवी दी जाती थी, पीजेड की पदवी दी जाती थी। हमने कहा कि धीरे धीरे करके हमने कहा कि अब लोकतंत्र हमारा नीचे तक पहुंच गया है, और अब किसी भी नागरिक में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए राजा और प्रजा का भेद खत्म हो गया। 47 से यात्रा की, हमने 71 में आकर कहा
के में कोई फर्क नहीं है, और इसलिए हमने पृथ्वी पर 71 में समाप्त कर दिया। तो इसलिए एक एक कदम आगे बढ़कर हमने ये किया है। इस तरह हम इसके आगे भी देखते हैं। हमने उस समय कहा कि पूरे देश में एक राजस्व व्यवस्था होगी। ये हमने 1948 में संकल्प किया था कि पूरे जैसा टैक्स होगा। हम देखते हैं कुछ साल पहले तक कहीं कुछ टैक्स था, कहीं कुछ टैक्स था, पर लाइन लगी रहती थी गाड़ियों की कि आपने यहाँ की पर्ची नहीं कटाई, यहाँ का टैक्स, वो सब होता था। आज हमने क्या देखा, 2018 में लागू किया पूरे देश में। आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि मोदी ने पूछा नहीं, मोदी ने किया नहीं, वगैरह वगैरह। ये राजनीति है। तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि इस देश ने 1948 में संकल्प किया था कि हम पूरे देश में एक जैसी टैक्स व्यवस्था लाएंगे जहां समान टैक्स होगा पूरे देश में। 1948 से हमें 70 साल लगे। 70 साल बाद 2018 में हमने पूरे देश में एक जैसी टैक्स व्यवस्था कर दी। इसलिए ये संकल्प 70 साल पुराने संकल्प है। और इसी तरह जब हमने कहा था कि पूरे देश का प्रशासन एक जैसा होगा, जम्मू कश्मीर उससे अपवाद बनकर चल रहा था। 70 साल इसको भी लिखे, और 70 साल बाद एक दिन यानी 5 और 6 अगस्त को भारत की सरकार ने यह तय किया कि अब भारत में संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं इस तरह से नहीं चलेंगी और पूरे देश का प्रशासन एक जैसा चलेगा। और ये निश्चित हो गया। और 5-6 अगस्त के बाद पूरे देश में भारत, जम्मू कश्मीर सहित पूरा भारत एक में है। एक सुप्रीम कोर्ट का वहां पर न्याय व्यवस्था, एक सेक्रेटरी, पूरे जो देश का चीफ सेक्रेटरी है वो वहां का भी, देश की सरकार है वो वहां की भी चिंता करती है। कोई अंतर नहीं बचा। इसलिए आज अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां के बड़े वर्ग के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। 300 के बाद वहां के सभी अधिकारों, सभी लोगों के अधिकार देश के बराबर हो गए हैं। और इसलिए वहां के लोग बड़ी संख्या में पहले से अधिक सुखी महसूस करते हैं, पहले से अधिक अवसरों की संभावना तलाश रहे हैं, और पहले से अधिक उत्साह में हैं। पूरे राज्य का बहुमत, शायद 90% से अधिक लोग ऐसे हैं जो इस नई व्यवस्था में बहुत खुश हैं और विकास में अपने आगे बढ़ने की तरफ देख रहे हैं, जिसकी उम्मीद वो नहीं किया करते थे। और इसलिए जिसको लगता था कि उनकी अगली पीढ़ी को कुछ करना है, तो जम्मू कश्मीर के हर परिवार के बच्चे अपने घर छोड़कर बाहर आना पड़ता था। वो दिल्ली, मुंबई जाते थे, बाकी जगहों पर जाते थे। और लेकिन हर किसी को ये स्पष्ट था कि बच्चे को अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो उसको अपने घर से दूर होना होगा। आज इस अंधेरे से निजात मिली है, उससे बाहर आए हैं। अब आगे कैसे होगा, ये एक सोचने की बात है। तो मैं फिर इस पर 2 तरीकों से बात करता हूं। पहला, हम लोगों को क्या करना है। 2 हिस्से हैं इसके। एक, जो भारत के नियंत्रण में जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, उसको सभी कष्ट दूर हो गए हैं, उसके सभी अधिकार मिल गए हैं। अब वहां का प्रशासन, वहां की राजनीति जिस प्रकार इन अधिकारों को पहुंचा देगी, जब तक पहुंचाएगी तब तक ये सारा प्रयास चलता रहेगा। ये वहां के स्थानीय नेतृत्व इस काम को जब भी और लेकिन अधिकार संवैधानिक रूप से उनको मिले। इसलिए जम्मू लद्दाख के जिन क्षेत्रों में आज तक हमारी दूरी बनी हुई थी, उतना जम्मू कश्मीर का अब भारत हो गया, उतना ही भारत के लोगों का जम्मू कश्मीर भी हो। इसलिए हम सबको वहां जाने का अवसर है। वहां कब्जा करने के लिए नहीं जाना है, वहां घूमने के लिए जाना है, वहां मिलने के लिए जाना है, वहां के लोगों के साथ संवाद करने के लिए जाना है, वहां से परिचय बढ़ाने के लिए जाना है, वहां की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए जाना है, ताकि हम अपना क्या योगदान वहां के लिए दे सकते हैं ये सुनिश्चित कर पाए। बिना देखे बिना जाने हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहां जाना है, इसलिए कि हम वहां के विकास, हमारा ही एक हिस्सा है, वो हमारे ही भाई हैं जो विकास की दौड़ में किन्हीं कारणों से पीछे पिछड़ गए हैं। इसलिए उनको समान अवसर मिले हैं, ये सब हम सब की भी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है। इसलिए हमें वहाँ ये समझने के लिए जाना है कि हम वहाँ क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ की विशेष परिस्थितियों में वहाँ का
एनवायरनमेंट भी है जिसकी चिंता बहुत हो रही है, वहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम है, वहाँ के समाज की व्यवस्था है, सीमा होने के कारण 3,500 किलोमीटर की सीमा वहाँ पर, 4,500 किलोमीटर की सीमा है, और उस सीमा पर ऐसे दोनों देश हैं पाकिस्तान और चीन जिनका अच्छा संबंध नहीं है, इसलिए निरंतर वहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहता है। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी अपनी कठिनाइयाँ हैं, हम समझ सकते हैं कि अगर कब तोप का गोला आकर गिरेगा आप तय नहीं कर पा रहे हो, उस समय में भविष्य के कितने सपने देख सकते हैं। तो लेकिन वहां पर उन लोगों को श्रेय दिया जाना चाहिए कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा है, सीमाओं पर वो लोग रह रहे हैं, तो उनका उत्साह बढ़ाना हमारा काम है, और उनको मिले उनके घर में रहते हुए ये भी करना हमारा काम है। लेकिन वहां कर वहां के पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले उद्योग धंधों की हमें करनी चाहिए। छोटे स्टार्टअप्स, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, जो वहाँ के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार, वहाँ बड़ा इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा जरूरी है कि वहाँ पर छोटे छोटे बड़ी संख्या में रोजगार देने वाले उद्योगों की एक श्रृंखला खड़ा करना। वहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर है, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, उसमें फूड प्रोसेसिंग करके उनकी वैल्यू एडिशन करना, ये हमारी वहाँ की ज़रूरत है। वहाँ पर सबसे बड़ी संभावना का क्षेत्र पर्यटन है, उस पर्यटन को हम आगे बढ़ाकर वहाँ पर रोजगार के लाखों लोगों के लिए अवसर पैदा कर सकते हैं, इसकी हमें चिंता करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे सारी चीज़ें जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। वहाँ पर मौसम इतना अच्छा है कि वहाँ पर टेम्परेचर नहीं है, वहाँ पर आपको एसी चलाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर बहुत कम लागत में आप सॉफ्टवेयर पार्क बना सकते हैं। वहाँ पर ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर पर होती हैं, वहाँ पर जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो शून्य से नीचे के तापमान में होती है, लद्दाख पूरा ऐसा, लद्दाख का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर शून्य से नीचे का तापमान मिल जाएगा। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के लद्दाख में हो सकते हैं जहाँ पर शून्य से नीचे का तापमान चाहिए, या जहाँ पर लद्दाख में मौजूद है तो जहाँ थिन एयर चाहिए, वैसे ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं जो थिन एयर में बहुत अच्छे हो सकते हैं। की अपार संभावना है, मेडिकल टूरिज्म की अपार संभावना है, वहाँ मिशन की अपार संभावना है, और जिसमें पर्यावरण को मजबूती ही मिल, तो नुकसान नहीं होता है। इसलिए ये सब करते हुए ये ध्यान रखना होगा को वहां पर ठीक रखने वाले सारे उद्योगों की हमें देखना। दूसरा, बाहर के लोग वहां जाकर बसेंगे इसकी संभावना, आशंका, ये दोनों बहुत नहीं है। ये विशेष निर्णय, विशेष व्यवस्था केवल इसलिए है कि जो लोग वहीं के रहने वाले थे, पिछली पीढ़ी जो 1990 में लोग आए और उनके बच्चे 1990 में वो अपनी मर्जी से नहीं आए थे, उनको जबरदस्ती निकलना पड़ा था, और उनके बच्चे चूंकि वहां पैदा नहीं हुए और इसलिए उनके डोमिसाइल का संकट था, और वो अपने आप को कश्मीरी कहलाने का अधिकार नहीं रखते थे, उनसे अधिकार छिन गया था, जम्मू वाले कहलाने का अधिकार छिन गया था, वो अधिकार उनको मिल जाएगा, ये उससे सुनिश्चित हुआ है। इसलिए बाहरी लोगों को बसाने के लिए नहीं, जिन लोगों के साथ वहां संविधान की आड़ में अन्याय हो रहा था, उनका अन्याय दूर करने का ये प्रयास है, ये कोई डेमोग्राफिक चेंज का प्रयास नहीं है वो, और वो इतनी आसानी से हो भी नहीं सकता, भारत जैसी डेमोक्रेसी में संभव भी नहीं है। ये केवल जिन लोगों के साथ संविधान में 70 साल तक अन्याय हुआ, उस अन्याय का प्रायश्चित करने का यह प्रयास है, इसको समझना चाहिए और उसी भावनाओं में चाहिए। इसके अतिरिक्त अब जब पूरा भारत एक, तो विकास के ये सारे अवसरों का बधाई ही नहीं करे। हम थिंक इंडिया के लोग हैं तो हम जानते हैं, हम स्टील के साथ हमने पूर्वोत्तर भारत को किस तरह, और केवल हमारा एक प्रोजेक्ट स्टूडेंट एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट ने उत्तर के मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सुदूर के क्षेत्रों को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका अपने यहाँ आना, हमें उनके यहाँ जाना, दोनों के साथ सांस्कृतिक संबंध, आना जाने का संबंध, इंटरेक्शन, ये देश को एक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ संयोग से ये नहीं हो सका, जो हमने नॉर्थ ईस्ट में किया है वही जब अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ करेंगे तो एक जो अपरिचय
का संबंध है, जो हमारी दूरी बनी हुई है, इसको हम दूर कर सकेंगे और पूरे भारत को एक करने का जो हमने सपना देखा है वो हम कर सकेंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख 370 के संशोधन, अनुच्छेद 35A के समाप्ति, भारत के संविधान के वहाँ पूरा लागू होने के बाद विकास के नए आयाम और एकता के नए अवसर ये हमें प्राप्त हुए हैं। इनका हमें लाभ उठाना है और प्रत्येक भारतीय को वहाँ पहुंचकर अपनी भूमिका निभानी है, आत्मीयता पैदा करना है और देश की एकात्मता को बढ़ाने का काम करना है। एक और जुड़ा हुआ, वो भी मैं आपके ध्यान में दिलाकर अपनी बात पूरी। ये ठीक है कि भारत के नियंत्रण में जो हिस्सा है उसको हमने अपने साथ पूरी तरह जोड़ लिया है, भी प्रशासनिक रूप से भी और समाज के स्तर पर हम धीरे धीरे इसको, लेकिन इसी जम्मू कश्मीर का आधे से अधिक हिस्सा तो LOC के दूसरी तरफ, नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ है, LAC के दूसरी, जहां पर पाकिस्तान और चीन का कब्जा है, वो भी जम्मू कश्मीर है, वो भी भारत है। और इसलिए ये याद रखना है कि नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ भी भारत है और वहां पर रहने वाले लोग भारत के नागरिक हैं और भारत के वे नागरिक जो नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर रह रहे हैं वो अपनी चॉइस से नहीं रह रहे। पाकिस्तान ने हमला किया, चीन ने हमला किया, उन पर कब्जा कर लिया, उन जगहों पर कब्जा कर लिया और 70 साल से वो मजबूर हैं उनके अत्याचार सहने के लिए। और चूंकि वो हमारे नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको भी वही अधिकार प्रदान करें जो भारत के संविधान ने देश के सभी नागरिकों के लिए दिए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम अब उसको पाकिस्तान और चीन की भाषा में ना समझें, उसको हम इस तरह स्वीकार करें कि वो भारत है, नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर का भारत है जिस पर जबरदस्ती पाकिस्तान और चीन का कब्जा है। इस कब्जे में रहने वाले लोग और भूमि, वहाँ की भूमि भी हमारी है, वहाँ के लोग भी हमारे हैं और उस भूमि और को भारत के जिस तरीके से हमने जम्मू कश्मीर इस हिस्से को अपने साथ एक किया है, वैसा ही नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर लद्दाख है, जो मीरपुर मुजफ्फराबाद का क्षेत्र है, जो गिलगित बल्तिस्तान के क्षेत्र को एक करना है, उनको भी अपनी इस प्रशासनिक व्यवस्था में लाना है, उनको भूगोल में लाना है, तब हमारा पूरा नारा कराकोरम से पूरा होगा। इसलिए हमें केवल यह नहीं जो हमने कर भी हमें करना है और हम देखते हैं कि जब हम एक राष्ट्र संकल्प व्यक्त करते हैं तो सरकारें फैसला लेती हैं, चाहे वो कोई भी सरकारें हों। जब हमने पुलवामा के बाद देश एक स्वर में खड़े होकर बोला कि इसका फैसला होना चाहिए, तो बालाकोट करने में सरकार ने भी देरी नहीं दिखाई। इसलिए अब जो प्रश्न बचा है, 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद ने एक सर्वसम्मत संकल्प पारित किया हुआ है। प्रधानमंत्री नरसिंहा राव थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी और बाकी सभी राजनीतिक दलों ने उसका समर्थन किया। सर्वसम्मति से भारत के संसद ने संकल्प पारित किया है कि पाकिस्तान चीन के साथ अगर कोई विषय बाकी है तो केवल इतना है कि पाकिस्तान के कब्जे में जो भारत का हिस्सा है वो हमें वापस लेना है और ऐसा करने की ताकत भी हम में है और ऐसी इच्छा शक्ति भी हम में है। तो इसलिए ये भारत की संसद का संकल्प है कि हम वो हिस्सा लेंगे और ऐसा करने की ताकत हम में है। ये हम संकल्प किए हुए भी संयोग से 25 साल हो गए, लेकिन हम नहीं कर पाए। लेकिन अब भारत का समय आया है, दुनिया में भारत की छवि बन रही है और दुनिया में भारत एक ताकतवर देश के साथ रूप में है। और जो इस कोरोना दौर में दुनिया जहां पहुंची है उसमें कि पाकिस्तान और चीन जहां बिल्कुल बिखरते जा रहे हैं, भारत अधिक महत्वपूर्ण, अधिक ताकतवर होकर उभर रहा है। कोरोना के बाद का भारत एक शक्तिशाली भारत, महाशक्ति भारत बनकर, और ऐसी स्थिति में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने उन नागरिकों को सारे अधिकार प्रदान करें जो नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर को भी वो अधिकार दें जो भारत का संविधान अपने नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। सीमा पर इसके लिए सैनिक खड़ा है, वो अपनी भूमिका निभाएगा, लेकिन देश में समाज के लोग और शिक्षा जगत के लोग, इनकी जिम्मेदारी है कि देश को बताएं, जागरूक करें कि भारत
एलओसी के इधर नहीं है, एलओसी के दूसरी ओर भी भारत है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा तक भारत ही है, और उसको एक करने का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा है, और उसको पूरा करने का काम हमारी पीढ़ी का है, और हम इसको करके रहेंगे। मुझे लगता है 370 के बाद के दोनों संकल्प अगर हमारे ध्यान में रखेंगे तो आने वाले कुछ वर्षों में जिस तरह दुनिया की कूटनीति जिस दिशा में जा रही है और जिस तरह का ध्रुवीकरण कोरोना के बाद होने की संभावना दिखाई दे रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम भारत का इतिहास भी बदलता देखेंगे, भारत का भूगोल भी बदलता देखेंगे, और हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिनके हाथों ये होने जा रहा है। आप सबका इस भूमिका में आप हैं, सौभाग्यशाली हैं, इसलिए आप सबका अभिनंदन। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, अगर कोई प्रश्न होगा तो उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Many thanks to you, sir, for enlightening us about different issue and different future aspects of Jammu and Kashmir after removal of Article 370. Now I request the moderator to the other moderator to carry forward the questions put by the participants. Thank you. All right, it's a request. It's a request for every attendee to pitch in the questions in the chat box so that we can address it one by one. इस अत्यंत ही रोचक और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं पुनः से थिंक इंडिया और स्पार्टन की टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है, मैं उनको एक एक करके आपके सम्मुख रखता हूं। श्री मिश्रा जी ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या जम्मू कश्मीर में गरीबी और बेरोजगारी ही वास्तविक समस्या है, जैसे कि और दूसरे राज्यों में है, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश, या फिर जम्मू कश्मीर की कुछ अलग ही समस्या है जिसके कारण जम्मू कश्मीर आज तक पिछड़ा रह गया? देखिए, वहाँ गरीबी बेरोजगारी की समस्या पूरे देश में है, जम्मू कश्मीर में सबसे कम है। जम्मू कश्मीर पर कैपिटा इनकम आंकड़ों में देखेंगे, वहाँ आंकड़ों का खेल बहुत चला है, वर्षों तक चला है, इसलिए आप देखेंगे कि आप जब देखेंगे कि वहाँ की पर कैपिटा इनकम तो, लेकिन पर कैपिटा खर्चा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर लग्जरी कार्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर कैपिटा रूम सेट बहुत ज़्यादा हैं। 57, आप कल्पना कर सकते हैं कि कश्मीर घाटी में 57% लोग, 57% लोगों के पास उससे बड़ा घर है। आप बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा की कल्पना कैसे घरों में लोग रहते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में आपको मनुष्यों के रहने के लिए, जानवरों के लिए कुछ जगह पे छप्पर हो सकते हैं, झोपड़ी हो सकती है, मनुष्य कोई आपको कच्चा घर नहीं मिलेगा। वहां पर ऐसा शायद ही कोई घर हो जिस घर में कोई एक सरकारी कर्मचारी ना हो। सबसे अधिक सरकारी नियुक्तियां वहां पर हुई हैं, जरूरत से ज्यादा है। इसलिए गरीबी बेरोजगारी वहां का बहाना है। गरीबी बेरोजगारी देश की तुलना में वहां पर बहुत कम है। ये उसका मूल कारण नहीं है, मूल कारण पाकिस्तान की साजिश है, मूल कारण ISI की गतिविधियां हैं, और उससे भी बड़ा कारण दिल्ली में ISI से बड़े एजेंट दिल्ली में हैं जिन्होंने इस परिस्थिति को बिगाड़ने का काम किया, जिन्होंने आपको सच नहीं बताया। देश को ये सच बताने के बजाय कोशिश ये की गई कि देश को ये पता ही नहीं चले कि वहाँ क्या हो रहा है। और जब ऐसी परिस्थितियां लगातार लंबे समय तक चलती हैं तो उसका अपना एक अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र पैदा हो जाता है। इसलिए कश्मीर घाटी में आज का आतंकवाद, ये राजनीति विज्ञान कम है और अर्थशास्त्र ज़्यादा है। वहाँ जो पैसे का लेन देन, बंटवारा और अनअकाउंटेड मनी का खेल है, हजारों करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष का, वो आतंकवाद को बनाने के लिए सुविधा उत्पन्न करता है। इसलिए गरीबी बेरोजगारी के कारण लगता है, मैं वही नहीं, नक्सल के चित्र में बाकी भी कोई भी आतंक अगर होता, अगर सबसे पहला आतंक कश्मीर में नहीं पैदा होता, फिर कालाहांडी में पैदा होता। सबसे गरीबी तो वहां के लोगों ने बंदूक नहीं उठाई। तो अगर गरीबी बेरोजगारी बंदूक का कारण होती तो फिर बाकी जगह, हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, जहां पर पहले आतंकवाद आना चाहिए था, वहां आज तक नहीं आया। तो आतंकवाद के पीछे
हैं जो बाहरी शक्तियों ने पैदा किए और भारत ठीक समय पर ठीक इलाज नहीं किया। मैं समझा पाया हूं क्या? जी जी सर, एक और प्रश्न है मानव चक्रवर्ती जी और सोमू पात्रा जी की ओर से। आपने ऐसा भी बताया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और चीन अधिकृत कश्मीर को लेने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इनका प्रश्न है कि हम उसे, हमारी सरकार और हमारी सेनाएं उसे किस रूप, कैसे और किस विधि में उसे अपने कब्जे में लाएगी, इसके लिए क्या प्रयास चल रहे हैं। हालांकि अभी गृह मंत्रालय की ओर से एक ट्वीट किया गया था और उनकी तरफ से बयान आया था, लेकिन क्या प्रक्रिया चल रही है, इसके बारे में आप प्रकाश डालें। देखिए, प्रक्रिया उसमें कुछ नहीं होनी है। हम प्रस्ताव पारित कर चुके हैं 1994 में कि हमें लेना है, तो अब इसके बाद कोई प्रक्रिया बची नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या मेरे परिचय में आपने बताया कि मैं जम्मू कश्मीर के बारे में काम करता हूं। हमने 2009 में, आज जो हम बात कर रहे हैं वो 2009 में हमने कहनी शुरू की थी, 10 साल में हमने इसको पूरा किया। क्या आप 3 साल पहले सोच सकते थे 370 हटेगी? लेकिन देश ने हटेगी, देश में पूरे में वातावरण बना और वो हट गई। लगता है कि अगर देश ये तय करेगा कि अब ये जो का वो नहीं रहेगा, तो जैसे 3 से ही गिलगित बल्तिस्तान भी, मीरपुर मुजफ्फराबाद भी के साथ आएंगे। और मैं जितना, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं बहुत निकट से देश के अंदर की भी गतिविधियों पर नजर रखता हूँ, देश के बाहर वो भी देखता हूँ, और मैं लगता है कि देश अगर खड़ा हो जाए समय से, कुछ ही वर्षों में हम लोगों के सक्रिय रहते ही हम देखेंगे कि ये हमारा लक्ष्य पूरा हो रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम इसको होते हुए देखेंगे। आप अगर चाहें तो तय कर सकते हैं, अभी 2020 चल रहा है, 2030 का अपना थिंक इंडिया का सम्मेलन मुजफ्फराबाद में तय कर दीजिए। जी बिल्कुल सर। सर एक और प्रश्न है, क्या कश्मीरी पंडितों पे जिन लोगों ने जुल्म ढाए हैं, क्या उन पे भारतीय दंड संहिता के आधार पे कुछ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सजा मिलेगी, या फिर उन्हें इसी तरह छोड़ दिया जाएगा? मुझे लगता है कि शबीर शाह जेल में है, यासीन मलिक जेल में है, गिलानी जेल में है, और उन्हीं केसेस में जेल में है। तो प्रक्रिया तो प्रारंभ हो गई है, लेकिन जिन लोगों के प्रति उन्होंने अपराध किए हैं उनको भी एक बार थोड़ा हिम्मत दिखानी पड़ेगी, उसके लिए लड़ना पड़ेगा ये सब, लेकिन उसकी पैरवी करनी पड़ती है। जो नहीं हो, कम है, उसकी गति कम है, धीरे धीरे ये बढ़ेगा और निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। लेकिन आप, जिन लोगों ने ये सब किया था उनमें से लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं। अब आप देख रहे हैं, जो कमांडर, लश्कर का कमांडर होता है ना, वो 22 साल का नौजवान होता है। जो उस समय जिन लोगों ने किया था उनमें से शायद लोग जिंदा बचे हैं, बाकी सब मारे जा चुके हैं। तो अब उनको तो नहीं है, लेकिन आज जो इस काम में जुटे हुए हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाना। जी एक और प्रश्न है, पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा और जिस प्रति उन्होंने अपराध किए उनको भी जरा स्टैंड लेना पड़ेगा कड़ाई के साथ। जी एक प्रश्न है, जो हिंदू प्रतीकों और सनातन प्रतीकों का जो इस्लामीकरण वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, उसे पुनः सनातन में परिवर्तित किया जाएगा कि नहीं? जैसे किशनगंगा नदी को नीलम, दरियाई नीलम कर दिया गया है, 435 मठ मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, हरि पर्वत को हरा पर्वत, शंकराचार्य पहाड़ी को सुलेमान पहाड़ी में तब्दील कर दिया गया, मंदिरों को ध्वस्त किया गया, इनका जीर्णोद्धार पुनः से किया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ करेगी या फिर जन समूह के सामूहिक उद्योग से ही यह संभव हो पाएगा? देखिए, ये तो जो आपने पढ़ा वो व्हाट्सएप वाले जानकारी है, पूरी गलत नहीं है लेकिन पूरी सही भी नहीं है। लेकिन ये सब करेगा कौन? जिन्होंने तोड़े हैं, आप उन्हीं से उम्मीद कर रहे हैं कि वो फिर से उन्हें ठीक भी करेंगे? ऐसा नहीं होगा। सरकार करती है, हमने राम मंदिर वाले मामले में देखा, सरकार का काम मंदिर बनाना। सरकार आपको कठिनाई ना आए इसमें सहायता, लेकिन जिनके मंदिर थे उनको बनाने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका है तो हमें ये करना चाहिए।
आपको शायद ये जानकर आनंद होगा कि पिछले 5 वर्षों में 6 मंदिर कश्मीर घाटी में बने हैं जहां पर निरंतर पूजा चल रही, पूजा बंद नहीं हुई। शंकराचार्य, जिसको सुलेमान पहाड़ी आप कह रहे हैं, पर उन्होंने उसका नाम बदलकर कागज में तख्ते सुलेमान कर दिया है। शंकराचार्य मंदिर की पूजा एक भी दिन 1990 के आतंकवाद में भी बंद नहीं हुई, आज भी बंद नहीं हुई। एक भी दिन मंदिर की पूजा बंद नहीं हुई है। उखरी बल की पूजा एक भी दिन मंदिर में बंद नहीं हुई। खीर भवानी की पूजा मंदिर में बंद नहीं हुई है। विवेकानंद 2 बार खीर भवानी मंदिर गए, जहां पर उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने, कि फिर एक देखिए एक रिश्ता निकल आया उड़ीसा का। तो विवेकानंद वहां बार बार गए, 2 बार गए हैं और वहां पर उन्होंने साधना की है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ये जो हो गया है और जिसको ठीक करना है, ये हम करने का संकल्प लें। हम पूरी उड़ीसा की ओर से एक उड़ीसा का मंदिर, भगवान जगन्नाथ का मंदिर कश्मीर में क्यों नहीं बन सकता? क्या हम ये संकल्प कर सकते हैं? पूरे उड़ीसा के लोग मिलकर एक मंदिर भगवान जगन्नाथ का कश्मीर में बनाएंगे। उसके लिए भूमि कैसे मिलेगी, इसकी व्यवस्था मैं करता हूँ, आप बताइए। आप तय करिए कि उड़ीसा राज्य की ओर से भगवान जगन्नाथ का मंदिर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बनेगा। जब हम ये करने लगेंगे, या वहां पर मंदिर हैं उसको हम पुनरुद्धार करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे, वहां पर होगा। अब वहां पर कोई रोकने वाला नहीं है, करने का संकल्प चाहिए, कुछ होगा। जो रुकने के, टूटने के, फूटने के दौर थे वो सब जा चुके हैं। निर्माण का समय आया है, भारत को जाने का समय आया है। आप तय करिए कि जिस रास्ते पे थे पैदल, उस पर विवेकानंद अगर 600 किलोमीटर पैदल चले थे, हम 10 किलोमीटर, उसी रास्ते पर शंकराचार्य पैदल चले थे, उस पर हम 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे। आप तय करिए, आइए, आप सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आकर देखिए। जम्मू कश्मीर वो नहीं है तो आप समझते हैं कि हवाई जहाज से उतरेंगे या रेलवे से बाहर आएंगे और वो जम्मू कश्मीर नहीं है। जम्मू कश्मीर बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, खूबसूरत है। वहाँ के लोग आपका स्वागत करेंगे। आप उनके लोगों के घर में रहिए, जैसे आप सील टूर में जाकर रहते हैं, ऐसे कश्मीर में आइए, उनके घरों में रहिए, हम व्यवस्था करेंगे। देखिए कश्मीर क्या है, और भारत के सांस्कृतिक कश्मीर को देखिए, और उसके निर्माण में, पुनर्निर्माण में अपना योगदान दीजिए। ये सब हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों से होना शुरू भी हुआ है। उस गति को बढ़ाने का काम अब करना है। जी, सुमित गोस्वामी जी की तरफ से एक प्रश्न है कि बहुत सारे तथाकथित बुद्धिमान व्यक्ति और स्टूडेंट्स कुछ विश्वविद्यालयों के भारत विखंडन के लिए या एंटी नेशनल जो बयानबाजी करते हैं, एंटी नेशनल मूवमेंट चलाते हैं, उनके विरोध में कोई, उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट लॉ बन सकता है क्या? ये तो उसका उत्तर शायद देने का अधिकारी मैं नहीं हूँ, लेकिन जहां जहां ये हो रहा है वो वहां उनको हमने छूट दी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है आप जहां सक्रिय हैं वहां तो वो नहीं करते, आप जहां नहीं हैं तो इसलिए आपको और अधिक सक्रिय होना है, आपको और अधिक काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से थिंक इंडिया की ओर से और स्पार्टन की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतने कम समय में आपने गागर में सागर भरते हुए हमें जम्मू कश्मीर के इतिहास, संपूर्ण भारत से उसके संबंध सूत्र, 1947 के बाद 370 की आड़ में जो धोखाधड़ी हुई और अगस्त 2019 में पुनः वहां भारतीय संविधान को लागू करने की प्रक्रिया जो शुरू हुई, इसके बाद हमें हमारे कर्तव्यों से बोध कराया, हमें आमंत्रण दिया कि हम जम्मू कश्मीर, वास्तविक जम्मू कश्मीर को, सांस्कृतिक जम्मू कश्मीर को देखें, समझें और तदनुरूप अपनी भूमिका स्पष्ट करें कि हम क्या कर सकते हैं। और पूरे उड़ीसा के प्रदेशवासियों को यह चुनौती भरा कार्य सौंपा कि हम वहाँ पे एक जगन्नाथ मंदिर का भी निर्माण करावें। इसके लिए हम लोग आगे बढ़े, जमीन मुहैया कराने के लिए आपने आश्वासन दिया। इसके लिए मैं आपको पुनः से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत 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 धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद। सभी प्रश्नों का उत्तर शायद नहीं दे पाया हूँ, लेकिन अगर आप कोई किसी को लगता है तो आप मेरा नंबर उनके साथ शेयर कर सकते हैं, अलग से भी बात कर सकते हैं। और आप जब भी आएँ जी, जम्मू कश्मीर, आप स्वागत है, बताइए। एक चैट बॉक्स में आप बहुत बहुत अपना कांटेक्ट नंबर और जीमेल एड्रेस अगर साझा कर दे तो हम बाद में भी प्रश्न आपसे हम लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद।
जी, आदरणीय भाई साहब ने अपना मेल आईडी हम सबको साझा कर दिया है। जिन्हें बाद में भी जम्मू कश्मीर से संबंधित कोई प्रश्न हो या वहाँ के लिए कुछ योजना बना रहे हो तो उनसे हम लोग बाद में भी जानकारी ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब मैं टेक्निकल टीम को आगे की कार्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। Thank you, sir. First of all, I would like to thank Mr. Ashur Patnagar, sir, for dedicating his time for Spartan Digital Conclave from the side of Think India and enlightening the minds of our attendees today and reflecting on different tenets of Jammu and Kashmir issue and 370 abrogation. So thank you, sir, for dedicating your time. And our moderators of the day, that is Professor Deepak Kumar Manti, sir, and Aras Ojas Pandey, sir. Thank you for moderating the meeting in such a beautiful manner and asking pertinent questions as well. And again, just a reminder, it is just one webinar event that we had in collaboration with Think India. More speakers, we'll be having more speakers on board from tomorrow, and it will continue. So please be sure to join us tomorrow as well till it ends. So thank you so much for joining us. I guess Sutas Bhatnagar sir has also stated his phone number of the Jammu Kashmir Study Center, so you could just contact him regarding this.